All right, let's start class. क्लास में क्या हो गया था भाई? Finding limits was done. Finding limits. Problem example 3. It was done. Properties and some properties of double integrals. Properties of double integral. Properties are all the properties are same, like you have for single integral, constant, multiple property. If you have some constant, some region R, C, fxy, dA, then this C can come outside from the integration fxy dA. Sum and difference of two functions. So this can carry forward plus minus. You can take this equal to some over some region R fxy dA plus minus gxy dA. Now all the properties will hold here. Domination property, double integral fxy dA greater than equal to 0 if your fxy greater than equal to 0 on region R. This additive property, this is important property. I will use it in solving some complicated integrals. If you have some region and suppose R is the region like this, so this type of region is there. It is your x-axis, y-axis. It is R. So R is the region of two non-overlapping regions, R1, R2. Suppose R is R1 union R2, where R1, R2 are non-overlapping. Means this is separate R1 region, and suppose this is separate, this R1, R2. So this is additive property. What you can write this equal to R1 fxy dA plus R2 fxy dA. We integrate separate R1, separate R2, where R is the union of two non-overlapping regions. So sometimes region will be there where you have to use this property. You cannot find the integration in a single limit, because when curves are changing, like you are taking a ray and curve is changing in two different. So यहाँ पर अगर आप देखिए ये different curve है, suppose ये different curve है. So there you have to take this additive property when you are having the region of two non-overlapping regions. जैसे प्रॉब्लम देते देखिए. Yes. Let us see your problem. Example 4. Page 847. Find the volume
of wedge like solid that lies beneath the surface z is equal to 16 minus x square minus y square, and above the region are bounded by the curve y is equal to twice under root x, the line y is equal to 4x minus 2, and the x-axis. Okay. So here volume निकालना है आपको. Find the volume of the wedge-like solid. Wedge-like solid बनेगा that lies beneath the surface से below and above the regions. तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे, देखिए ये व्हाट इज दिस, क्या चीज है सर? पैराबोलॉइड. पैराबोलॉइड है, xy पावर 2 है, z इज पावर 1 है ना, और माइनस में है तो ये आपका है क्या, z इज इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर. सो इट इज डाउनवर्ड पैराबोलॉइड whose vertices is at 16 है ना. when xy is 0, z is 16, so vertices is at 16. तो पैराबोलॉइड है ये. इसकी जो फिगर आएगी, if you will see here, like this, इस तरीके से ये जाएगा. 3 डायमेंशनल फिगर है क्योंकि पैराबोलॉइड है. ये 16 पे कट करेगा ऊपर. इट इज द वर्टेक्स एट z एक्सिस. इससे बिलो ये पूरा पैराबोलॉइड इस तरीके से आ रहा होगा. व्हेन यू इट विल बी मूविंग लाइक दिस. तो एक पैराबोलॉइड पूरा ये इस तरीके से आ रहा होगा. इसे हम मूव करते हैं इस तरीके से. 3 डायमेंशनल फिगर है. पूरा पैराबोलॉइड आ रहा होगा ये. इसका अब आपका हम नीचे से इसका प्रोजेक्शन जब आप लेंगे ऑन द एक्स वाई प्लेन, प्रोजेक्शन क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लेन पे अगर रीजन बनाऊं मैं, रीजन इज y इज इक्वल टू 2 रूट x. व्हाट इज y इज इक्वल टू 2 रूट x? इट इज आल्सो पैराबोला. y इज इक्वल टू 2 रूट x है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. सपोज दिस इज योर y, दिस इज योर x. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x मींस व्हाट, बताओ जरा. रीजन पे कैसे आएगा ये? ये रीजन बनाओ इसको जरा. इट इज पैराबोला एक्स साइड पे है ना. यस सर. इधर ऐसे सर एक्स पे पॉजिटिव आएगी वैल्यू. ऐसे आएगी, यूं आ रहा होगा. और ये this is a line y is equal to 4x minus 2. So this is your y is equal to 2 root x. This is a line y is equal to 4x minus 2. इसका मतलब क्या है? इसे अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 4x minus y is equal to 4x minus y is equal to 2. तो x पर 2 इंटरसेप्ट है ये, like this. So this is your y is equal to twice root x. This is y is equal to 4x minus 2 and the x-axis. This is your x-axis. तो ये जब इसको आप ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो ये ऊपर इसको कट करता हो जाएगा इस तरीके से, जो ऊपर फिगर दिख रही है. इसका प्रोजेक्शन है ये, इस तरीके से यहाँ आएगा ये.
और इसे इधर लो करके थोड़ा सा दिख रही है ये चीजें। दिस इज द फिगर। और इधर बना सकते हैं आप। इसे कलर डिफरेंट कर लेते हैं। ये आपका पैराबोला था यहाँ से इस तरीके से, ये लाइन, इसको जब आपने ऊपर बढ़ाया तो इस तरीके से इसे कट करेगा। अब जो आपके पास फिगर बनेगी, ये ऊपर पैराबोलाइड का ये कट होगा, नीचे ये सॉलिड है। ओके, तो ये वेज शेप, कुछ वेज शेप बन रहा है। क्लियर? तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है भाई। दिख रहा है ये? इसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। बताइए। सो फॉर इसे हटा दो, बस ये वेज शेप मिल गया आपको। सो दैट इज इनफ। लाइक दिस। तो जो ऊपर है टॉप, दैट इज योर द एक्स वाई प्लेन। So I want to find the volume of this. So for volume, you have to take the limits. You know, volume का फॉर्मूला तो आपको मालूम है। Volume is what? बताइए। डबल इंटीग्रेशन हाँ, डबल इंटीग्रेशन R fxy, fxy is given to you, है ना, and dA। अब dA में you have to decide कि अगर x की लिमिट पहले या y की, तो उसके लिए I will have to plot this region। तो पहले आप रीजन प्लॉट कर लेते हैं, जो एक्स वाई प्लेन का रीजन है। तो इसको अगर मैं आई एम प्लॉटिंग दिस रीजन हियर सेपरेटली, तो इट विल बी व्हाट, ये आपका पैराबोला था y इज इक्वल टू, तो ये दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर y। तो ये पैराबोला कैसे आएगा? दिस, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। और दिस इज अ लाइन इंटरसेप्टिंग एट 2। दिस इज, नहीं, इंटरसेप्टिंग एट वेयर, 4x माइनस 2 था, तो 0.5, 1/2 1/2। and this is your y is equal to 2 root x. This is a line, y is equal to 4x minus 2. So this is the region you can see here. अब choice it in your hand कि हमें क्या करना है। Suppose firstly I want to find the limit of y, suppose। तो अगर आपको पहले y की लिमिट लेनी है तो what will be happen? Suppose I want to take first limit, या पहले चलो x की ले लेते हैं। अगर x की लिमिट लेनी है तो क्या होगा? Suppose I am taking पहले लिमिट ऑफ x, तो dx। बताइए व्हाट इज द लिमिट ऑफ x? एनीवन? कैसे लें? सर 0 to 0.5 है x की लिमिट 0 to 2. अरे 0. 0 to 0.5 Yes, sir. सब फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? आई एक्सप्लेन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप स्केच द डायग्राम, स्केच कर लिया, स्केच द रीजन। व्हाट इज सेकंड स्टेप? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x axis करेंगे। जब x एक्सिस की लिमिट लेनी है तो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, where it is entering that is the lower limit in terms of y, where it is leaving that is the upper limit of x in terms of y। तो यहाँ पर इसने एंटर किया, इसलिए ये रीजन, ये कर्व क्या है? दिस इज द कर्व। व्हाट इज द लोअर 4x लिमिट? minus 2 अरे सर 4x minus 2 अरे ये यहाँ पर एंटर करा यार, ये कर्व है y is equal to 2 root x। x कितना है यहाँ पे? व्हाट इज x यार? y स्क्वायर बाई 2. 4, sorry. y square by 4, and here it is leaving। What is x here?
y plus 2 by 4. हाँ, y plus 2/4. ओके, ये x की लिमिट हुई. अब y, now I will see कि this ray how much maximum, how much minimum it can take the value of y. तो कितना मिनिमम जा सकता है ये? दिस रे कैन गो अप टू दिस x एक्सिस, यहाँ तक. यहाँ पे y कितना है? 0. 0. एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू हेयर. इससे ज्यादा तो बाहर जाएगी नहीं. दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस रे. y कितना है यहाँ? इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, 1,2 आ जाएगा. सॉल्व कर लीजिए. तो y इज 2. ठीक है, ये वैल्यू हुई इसकी. पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल रहे थे. dy. ओके, इट कैन सॉल्व, इट कैन बी सॉल्वेबल इजीली. पहले x के टर्म में करना है आपको, तो y विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट. क्या हो जाएगा? 16x माइनस x³/3 माइनस xy² एंड सो ऑन. ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मैं नहीं जा रहा. दैट इज जस्ट कैलकुलेशन. तो यहाँ पे इजीली हो गया. लेकिन सपोज अगर somebody takes firstly limit of y and then x, then what will happen? That I want to explain now. Suppose if you want to take the limit of y first, the same problem. Again, I am plotting the region. So this is the region. Y is equal to क्या था ये? Twice root x, and this is your line. Y is equal to 4x minus 2. Somebody suppose taking firstly limit of y, तो क्या होगा? सर पैरेलल लाइन खींचेंगे y एक्सिस के. 16 minus x² minus y² dy. पैरेलल लाइन खींचेंगे y एक्सिस के. ये आ गई पैरेलल लाइन. ओके, now you can see कि this line is entering from here and leaving here. लेकिन आप अगर देखें, ये लाइन यहाँ पर एंटर कर रही है सिर्फ जब यहाँ तक है, 0 से लेके 0.5 तक. जब ये लाइन इसको क्रॉस करेगी तो कर्व बदल जाएगा. फिर सर ये एंटर लिमिट चेंज करेगी, करनी होगी. तो लिमिट चेंज करनी होगी. तो इसका क्या हुआ कि नाउ एक्चुअली इट इज हैविंग 2 रीजन्स. नाउ you have 2 regions. Yes. Okay, in that case you have 2 regions. तो अगर मैं इसे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दूं, तो you have one region is this. तो मैं I can divide this into 2 regions, 2 non-overlapping regions. So one region is this, one region is this, green color region, and this is your red color region. Is it clear? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा भाई? We have to take limit r1 plus r2. This is your r2 and this is your r1. So this I have to break r1. तो r1 में लिमिट क्या होगी? y यहाँ से एंटर हो रहा है, तो y is equal to 0 to leaving this curve. कर्व इतना है, twice root x, है ना? Yes sir. And x is running from 0 to कितना? 0.5. 0.5. 0.5 dx plus, now in this curve y is how much? For Y is equal r2, to 4x minus y is equal to 4x minus 2 to twice root x 2 root dy. And what about dx? 0.1 to 0.5 to 1,2. सर 2. 2 है या 1 है? x, यहाँ 1 है x. ये x की लिमिट लेनी है. x है 1,2. 1 हो जाएगा. 1. ठीक है, इसे फिर सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा, लेकिन इट विल टेक ट्वाइस टाइम, 2 times टाइम, है ना? यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर आपको 2 times यू हैव टू. जाहिर डबल इंटीग्रल आप यहाँ पर एक बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बार करेंगे, तो कम से कम दुगना टाइम तो लगना ही. ठीक है, तो ये चॉइस आपके हाथ में होगी. दिस इज द चॉइस विच यू हैव टू सी द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू डिसाइड
कि फर्स्टली अगर हम dx के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इजी पड़ रहा है, या dy के रेस्पेक्ट में इजी पड़ रहा है ना, इन दिस वे. बट हेयर आई हैव यूजिंग द एडिटिव प्रॉपर्टी, जो कह रहा था नॉन ओवरलैपिंग रीजन में, बाय यूजिंग द, क्योंकि समटाइम्स इट विल हैपन कि यू हैव टू टेक टू लिमिट्स, चाहे आप x के रेस्पेक्ट में ले या y के, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे. तो वहाँ पे हम ये एडिटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं. सो क्लियर है भाई? यस सर। गुड. तो ये एक प्रॉब्लम थी, एक्सप्लोर प्रॉब्लम से. ये प्रॉब्लम्स आप करेंगे अपने आप, सारी चीजें खुद से करनी है, ध्यान रखना. क्विज में कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो यू नीड अ वेरी गुड प्रैक्टिस. तो ये एक्सरसाइज है 15.2. आई एम गिविंग यू प्रॉब्लम्स 33, 35, 37, 39, 41, पेज नंबर 848. ये सब आप डबल इंटीग्रल की प्रॉब्लम है. स्केच द रीजन एंड राइट एंड इक्विवेलेंट डबल इंटीग्रल विद द ऑटोमेटिकेशन रिवर्स्ड. ये प्रॉब्लम है. ठीक, स्केच करना है रीजन को और इसका इक्विवेलेंट डबल इंटीग्रल लिखना है इन द रिवर्सिंग ऑर्डर. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव 15.3. Just a minute, friends. एक मिनट. Yes. Next topic we have area by double integration. 15.3. Area by double integration. We can find area also by this double integration. How? क्या कर दें भाई, अगर एफ एक्स वाई को 1 कर दें तो इट विल गिव यू द एरिया ऑफ अ. अब एरिया के लिए क्लोज तो होना जरूरी है भाई, इसको क्लोज एंड राउंडेड प्लेन रीजन. अगर क्लोज बाउंडेड नहीं होगा तो क्या होगा? सर एरिया कहाँ से पता एरिया चलेगा? नहीं, हाँ, एरिया के लिए आपको यू नीड सम क्लोज बाउंड्री लगानी पड़ेगी ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई कितना एरिया है. अगर वो बाउंड्री नहीं है तो एरिया क्या है? इनफाइनाइट. तो एरिया विल बी व्हाट? डबल इंटीग्रेशन डी ए. दैट मीन्स व्हाट? एफ एक्स वाई को अगर हम पुट कर दे 1, कि एफ एक्स वाई से क्या हो रहा था, जेड एक्सिस आपके पास इंक्लूड हो जाती थी. जेड एक्सिस आ गई, उसका जैसे जेड एक्सिस आया आपके पास तो उसमें वॉल्यूम बन गया वो, है ना, वॉल्यूम दे देता था वो. नाउ व्हेन एफ एक्स वाई इज 1, एफ एक्स वाई 1 का मतलब क्या हुआ कि नाउ यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ ओनली ऑन द रीजन डी एक्स डी वाई. तो ये क्या हो जाएगा एरिया? ये क्या, दैट इट विल गिव यू द एरिया, क्योंकि अब क्या है, यू आर जस्ट इंटीग्रेटिंग द लिमिट ऑफ एक्स एंड लिमिट ऑफ वाई, so it will be the area. Okay, so fxy is 1, then this formula will give you the area. सर सिंगल इंटीग्रेशन से भी निकल सकता है ना एरिया तो? हाँ, सिंपल से निकल सकता है. ये आपके पास वही होता था, एरिया का फॉर्मूला तो है ही वो, वाई डी तो एक्स सर हमें डबल की जरूरत क्या है फिर एरिया के लिए? एक्स डी वाई. जरूरत नहीं है तो रेशो, अगर आपके पास डबल इंटीग्रेशन के टर्म में है तो आप निकाल सकते हैं. अगर आपको डबल इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है, डबल लिमिट्स आपके पास पता है वाई एक्स की,
तो यू कैन फाइंड द एरिया। दे आर सेइंग कि डबल इंटीग्रल से भी एरिया निकाल सकते हैं, ये नहीं कह रहे कि इससे निकालना है आपको, बट यू हैव वन अल्टरनेट फॉर फाइंडिंग द एरिया इन डबल इंटीग्रल टर्म आल्सो। क्या कि एफ से 1 हो जाए। से इस टाइप की प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एरिया, find the area of the region R bounded by y is equal to x and y is equal to x square in the first quadrant। अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू वैसे नहीं गिवन है, बताइए इसे सिंगल इंटीग्रल से कैसे निकालोगे? सिंगल इंटीग्रल से कैसे निकालोगे इसको? या तो सम लोगे ना, 2 के पहले इस कर्व का एरिया फिर इस कर्व का एरिया, उसे ऐड करेंगे आप इस फॉर्मूले से लगा के, y इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें लिमिट x की लेंगे, ये तो करोगे। अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड द एरिया बाय यूजिंग सम सिंगल इंटीग्रेशन, हाउ विल फाइंड इट? सर एक तो सर लाइन बन जाएगी y इक्वल टू x और फिर एक पैराबोला बन जाएगा। हाँ, तो 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। और x की लिमिट क्या होगी? x की लिमिट क्या लोगे? आपने एक x लाइन की बन लिमिट सर वो क्या फिगर बना के देखना पड़ेगा सर। लो, ये बन गया y इज इक्वल टू x लिमिट 0 to 1 आ जाएगी सर। है। 0 to 1 सर। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? डबल सिंगल इंटीग्रल से कैसे निकालोगे इसको, ये बताओ। मैं मेरा सवाल तो ये है y इज इक्वल टू x और आपके पास ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड सर ऊपर पैराबोला। ऊपर पैराबोला बन जाएगा। अपवर्ड पैराबोला, दिस इज y इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसे हमने सॉल्व किया, 1 1 आ गया ये। 1 1 0 0 to 1 1। हाँ, तो सर व्हाट इज द एरिया? हाँ सर सर 10+2 लेवल में सर इसे हम सर ऐसे माइनस सॉल्व। करना होगा सर। हाँ, जी सर, करना पड़ेगा। पहले सर y इक्वल टू x का निकाल के सर उससे माइनस करना होगा। माइनस करोगे ना, डबल का काम करना पड़ेगा। पहले इसका एरिया जी निकलेगा सर। नीचे का, फिर इसका बिलो दिस, इसमें से माइनस किया तो ये रिमेनिंग हाँ, पोर्शन का आ माइनस जाएगा। माइनस सर 2 बार निकालना पड़ेगा। 2 बार करना पड़ेगा, यहाँ एक बार में काम हो जाएगा। देखो हमने एक रे ले ली, मान लो आई एम टेकिंग फर्स्ट रे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? डबल इंटीग्रल, पहले हमने आई एम टेकिंग फर्स्ट लिमिट ऑफ वाई, तो वाई इज एंटरिंग हियर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिविंग इन दिस कर्व y इक्वल टू x। एक्स। अब एफ एक्स वाई तो 1 है, तो ये डी एक्स हो गया। और डी वाई की लिमिट हाउ मच? 0 to 0 to 1। 0 to 1, बस इसे सॉल्व कर लो। अब क्या हो गया यहाँ? इट्स नथिंग, हाउ मच? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स? एक्स x एक्स स्क्वायर टू एक्स डी वाई। कितना आ गया ये देखो? 0 to 1 एक्स रखा तो एक्स, माइनस नहीं सॉरी, पहले हमने y की लिमिट ली है, एक्सक्यूज एक मिनट, ये dy है, डी है ना, पहले y की लिमिट ली है ना। x माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, तो ये y आया, तो आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। वही तो आ गया जो आप कह रहे थे अभी। ये क्या आ गया? वही x 0 to 1 माइनस, माइनस वही आ गया करेंगे सर, वही होगी। जो आप बता रहे थे। यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिमिट लगा के कर दिया, तो इसे सॉल्व कर लोगे 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो in this way you can find the area by using this double integration also। वो 12 10+2 वाला मेथड तो है ही आपके पास। Then you can find also average value by using integration average value। average value क्या होगा? average value of some function f over r। किसी रीजन r में सपोज आपको r एवरेज वैल्यू f की निकालनी है। इट्स फॉर्मूला इज 1 area of r double integration r f dA। मीन्स व्हाट? जो ये आपके पास क्वांटिटी आ रही है जैसे वॉल्यूम है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें एरिया से, तो ये आपको एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे देगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ एफ इज द टेम्परेचर, सपोज एफ इज द टेम्परेचर है यहाँ पे ऑफ अ प्लेट, ऑफ अ थिन प्लेट, ठीक, कवरिंग आर रीजन कवर करते हुए एक थिन प्लेट का आपका पास एफ जो है वो क्या है, टेम्परेचर है। तो देन डबल इंटीग्रल डिवाइडेड बाई आर, ये क्या दे देगा, इट विल गिव यू द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लेट। ठीक है, क्या दे देगा, एवरेज वैल्यू। तो अगर एफ टेम्परेचर है देन दिस क्वांटिटी विल गिव यू, देन बाय दिस फॉर्मूला वी कैन गेट, अगर इसे मैं 1 कह दूं, बाय फॉर्मूला 1 we get the average temperature of the plate, average temperature of the plate। तो ये एवरेज वैल्यू दे देता है आपको एक, है ना। एवरेज के, एवरेज इज इम्पोर्टेंट समटाइम्स टू गेट द आइडिया। आपकी क्लास का एवरेज 20 गया तो इससे आइडिया लग गया कि पेपर जो है किस टाइप का रहा होगा या स्टूडेंट्स की तैयारी कैसी थी। तो एवरेज वैल्यू इज आल्सो इम्पोर्टेंट समटाइम्स। एग्जाम्पल 3, फाइंड द average value of fxy is equal to x cos xy over the rectangle r x line 0 to pi and y line 0 to 1। ठीक है, यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकाल दी इस फंक्शन की। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा भाई आपको, व्हाट द थिंग्स यू हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू दिस। फर्स्ट थिंग इज एरिया। एरिया क्या है यहाँ पर तो एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इट्स अ रेक्टेंगल पाई आ जाएगा। पाई आ जाएगा ना। अगर कोई वैसा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो एरिया के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। यहाँ पे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ पाई हो गई विद 1 हो गई, तो लेंथ टू ब्रेथ। सो एवरेज वैल्यू इज व्हाट, तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई डबल इंटीग्रल। पहले अगर x की लिमिट लेना चाहे तो आप x की ले लें या y की लेना। अब ये देखना पड़ेगा प्रॉब्लम, पहले किसकी ले लूं तो आसान हो जाएगा, बताओ। y की लूं या x की? वाई के सर, वाई के। y की ले लेते हैं, क्योंकि y लेंगे तो हमें बाई पार्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। x विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट, वरना बाई पार्ट करना पड़ता। x भी होता है, यहाँ पे भी x होता है। तो dy एंड x इज 0 to पाई dx। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इट इज कमिंग 2 आफ्टर सॉल्विंग। 2 मतलब ये 2 आएगा और पाई अपॉन ऑलरेडी था, तो 2 अपॉन पाई। सो इट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। एक प्रॉब्लम ये थी, बस एक आइडिया था एवरेज वैल्यू का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर वहाँ टॉपिक, पर एक्स हाँ, की टर्म में क्यों नहीं लिखा सर? एक्स की टर्म में लिखोगे तो हो जाएगा, लेकिन बाई पार्ट करना पड़ेगा आपको पहले। अगर एक्स की टर्म में लिखोगे तो क्या होता है, एक्स कॉस एक्स वाई डी एक्स। अब यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नहीं सर, फंक्शन। लिमिट को क्यों नहीं लिखा है सर एक्स की? इसमें तो लिमिट दे रखी है ना ऑलरेडी, 0 to पाई बाई 0 to 1। यहाँ क्या करना था, यहाँ ऑलरेडी लिमिट दे रखी है दोनों आपकी। ठीक है, इसको आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर तो ऑलरेडी स्केलर्स ही है। अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्स वाई आपका इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ 0 to पाई। ये एक्स 0 to पाई हो गया, वाई 0 to 1 है। ये एक प्लेट है, दिस इज पाई, दिस इज पाई कॉमा 1। अब यहाँ पर अगर आप लाइन लेंगे तो क्या होगा, ये वो, ये तो y 0 to 1 है। और अगर ऐसे लाइन लेंगे तो x 0 to पाई है। तो इसमें वैल्यू किसका टर्म में लिखेंगे, यहाँ कोई कर्व नहीं दे रखा है ना। इन कर्व की इक्वेशन ही ये है, दिस इज योर x इज इक्वल टू पाई, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज y इज इक्वल टू 1। ओके, यस सर। कर्व के टर्म होता तो लिख देते, यहाँ पे ऑलरेडी इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ
1 and pi लाइन्स है ना, ये सिंपल, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस. Next concept we have double integral in polar form. For 15.4, double integral in polar form. Polar form क्या होती है बताइए anyone? सर जो थीटा के टर्म्स में होती है, sin थीटा हाँ. cos थीटा. Sometimes it is easy to solve integration in polar form. Polar form में क्या होता है? How we move? In polar form we move in angular way. Angular distance है ना theta. This is your angle and this is called radial distance r. तो coordinate क्या लिखते हैं इसमें? r comma theta है ना. This is called polar form. And the relation in polar form and Cartesian form is what? X is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. तो x square plus y square is equal to r square. तो इससे r कितना निकल सकता है? And what is theta? Tan inverse y upon है. ऐसे डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल आएगी, ये r की. So it is the relation in Cartesian and polar. So any Cartesian point can be represented in a polar form. Sometimes polar representation is important and polar integration is easier to evaluate the region. ये easier to evaluate the integrals है ना. अगर आपके पास fan shape figure हो तो I can find this. Fan shape figure क्या हुआ? जैसे like this, your region is given like this. It is the region. Suppose this is the region and you want to find इसके बीच में अगर लाई करना है, ये region है हमारा. I want to find what is the value of double integral under this region. ठीक है, this thing I will explain in the next lecture because time is very short. How to find double integral in polar form by using the Riemann sum concept. Okay. So I will continue tomorrow. It is very important topic. Don't miss it. All of you. Okay, thank you, sir. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर.